السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ پہلے آئیے چند شعر سن لے، اس کے بعد میں اپنا گفتگو آگے بڑھائیں کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ ایک دفعہ مچل کر بول دیجئے سبحان اللہ، اور مچل کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ ارے تیز بولی، اتنا آرام سے بول رہے ہیں آپ لوگ، کسی ایرے گئے کی محفل میں تھوڑے بیٹھے، میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے۔ شاعر خود کہتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ ماں کا تو دو شعر اور سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنا گفتگو آگے بڑھاؤں گا کہ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، نبی کے شہر کا سینہ دکھا کے لے آؤں، کہ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، نبی کے شہر کا سینہ دکھا کے لے آؤں۔ خدا اتنی عطا ہو میری کمائی پر میں اپنے ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، خدا اتنی عطا ہو میری کمائی پر میں اپنے ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ اور جو اپنے ماں کی قدر نہیں کرتے ہیں یہ بھی شعر سن لے کہ عبادتوں کی وہ لذت نہیں سمجھ پائے جو مصطفیٰ کی محبت نہیں سمجھ پائے، اور تمنا کرتے ہیں وہ لوگ کیسے جنت کی جو ماں کی قدموں کی جنت نہیں سمجھ پائے۔ تمنا کرتے ہیں وہ لوگ کیسے جنت کی جو ماں کی قدموں کی جنت نہیں سمجھ پائے۔ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں کہ روزے محشر کی جاگداز بوت، اولین کوشش نماز بوت۔ یہ فارسی لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو کہ جان بھلانے والا ہوگا سب سے پہلے تفشیش نماز ہوگی۔ آپ لوگ کو پتہ بھی ہوگا، علماء کرام سے بارہا سنتے ہوں گے کہ آپ لوگ قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کا سوال کیا ہوگا؟ نماز۔ کیا ہوگا؟ نماز۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرات آج ساری دنیا میں بے چینی پائی جاتی ہے، کوئی ملک ہو یا شہر، گاؤں ہو یا محلہ، ہندوستان ہو یا پاکستان، امریکہ ہو یا افریقہ، بلکہ کوئی ایسا گھر نہیں جہاں بد امنی و بے قراری نہ پائی جاتی ہو۔ ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ آخر وہ آرام اور راحت کہاں ملے گی؟ وہ آرام اور راحت تلاش کرے، کیا ہندوستان میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا امریکہ میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا افریقہ میں ملے گی؟ نہیں۔ اے مسلمانوں آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ میں نے ہندوستان کے گوشے میں چکر لگایا مگر چین و سکون نہ ملا، پاکستان کے کتے کا نظارہ کیا مگر چین و سکون نہ ملا، پوری دنیا ہر شہر کا چکر لگایا مگر چین و سکون نہ ملا، ہر طرف بے چینی نظر آئی۔ جب میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن تو ہی ہماری رہنمائی فرما، آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ تو قرآن نے جواب دیا، ساحل پوچھتا ہے کہ چین و سکون کہاں ملے گا؟ تو سنا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا مطلب ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔
हज़रत अबू सईद से रवायत वो फरमाते एक मरतबा मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह कौन सा बंदा अज़्ज़ा वजल का अफजल है और क़यामत के दिन बुलंद दर्जे वाला है? तो सरवर क़ल्ब सीना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का बहुत जिक्र करने वाले मर्द है लेकिन उससे भी ज़्यादा जिक्र करने वाले औरत है। उसने फिर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन सा बंदा अज़्ज़ा वजल का गाजी है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़ा वजल का गाजी वो है जो कुफार मुशरिकीन पर इतनी तलवार चलाई कि तलवार टूट जाए और खून का रंग जाए, मगर उससे बढ़कर गाजी वो है जो राह खुदा में जहद करे और जिक्र इलाही से गाफिल ना रहे। जब क़यामत कायम होगी तो नमाजियों को जन्नत की तरफ जाने का हुक्म होगा। पहला गिराव जब जन्नत में दाखिल होगा उसके चेहरे आफ्ताब की तरह रोशन होंगे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम्हारे नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे हम आज़ान से पहले वजू करके मस्जिद में हाजिर हो जाते थे। अल्लाह अकबर। फिर दूसरा गिराव दाखिल होगा जिसके चेहरे चौदाहमी की तरह चमकते होंगे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम्हारे नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे हम आज़ान सुनते ही फौरन वजू करके मस्जिद में हाजिर हो जाते थे। फिर तीसरा गिराव दाखिल होगा, फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम्हारे नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे हम आज़ान के बाद वजू करके मस्जिद में हाजिर हो जाते थे। अल्लाह अकबर। नमाज इतनी बड़ी इबादत है कि नमाज शुरू करते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हज़रत इमाम से रवायत है कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके दरमियान परवरदिगार के आलम के दरमियान उसके सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो लिबास पहनते हैं, वो लिबास उन पे लानत बरसता है। और लुकमा खाते हैं तो लुकमा उन पे लानत बरसता है। कहीं बाहर जाते घूमते हैं, ये छोटे मोटे जिक्र हैं, कहते हैं मेरे मौला मुझे इतनी ताकत दे दे मैं इधर इसे नाबूद कर दूं। अल्लाह अकबर। और जो शख्स अजान सुन के मस्जिद में हाजिर हो जाता है और अपने इमाम को इंतजार करने लगता है उसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खतीबे इस्लाम, खतीबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए अब आला हज़रत की चंद वाक़िया आपको बता के मैं अपना गुफ्तगू ख़त्म करूँ। आप लोग एक में चलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज का साकिब का कुछ आता है ना जाता, कहते आँख बंद कर दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। ऐसे मेरे आला हज़रत की चौखट पर एक भिखारी आ गया था। लोग कहते आला हज़रत ने शिर्क को बढ़ावा किया है, आला हज़रत ने कुफ्र को बढ़ावा किया है। अरे नादान, आला हज़रत ने तो अक़ीदे की हिफाजत की है, वो किस शान से की है। मेरे रज़ा की चौखट पर एक भिखारी आता है और कहता मुझे इतना रुपया दो, मुझे 5 रुपया दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम मकान से निकलते हैं, कहते हैं तुझे जितना पैसा चाहिए उतना ले ले, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्मरानी में दखल अंदाज ना करे, ये शरीयत के खिलाफ है। वो जुमला ना को उसे पता नहीं था, सिर्फ एक मौलवी से नहीं मुस्तफ़ा के दर के कैलेंडर से पाला पड़ गया था। कहता है 10 देता है दे वरना तेरी हवेली पलट दूंगा। माँ अंदर से आवाज लगाती है, बेटा जितना मांगता है दे दे, भिखारियों को मुंह नहीं लगा करते, फकीरों को मुंह नहीं लगा करते। मेरे इमाम ने कहा माँ देने को तुम इसको हवेली दे दूंगा, अगर मुस्तफा के शरीयत के खिलाफ कोई एक जुमला कहेगा तो इमाम अहमद रज़ा गवारा नहीं हो करेगा। इधर ये बातें हो रही थी, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का 55 का जमाना था। वो छत पे टहल रहे थे, अचानक उनकी पैर फिसलती, वो सर के बल गिर पड़ते हैं। उनकी वालिदा चीख उठती है, कहती है देखो बेटा तुम्हारा बेटा गिर गया। मैंने कहा था फकीरों से नहीं उलझना चाहिए, भिखारियों से नहीं उलझना चाहिए। मेरे इमाम ने कहा माँ तो एक मुस्तफा रजा है, अगर मुस्तफा एक मुस्तफा रजा है, अगर मुस्तफा के शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हूँ। इधर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अपने तोड़ के हाथ अपने बाप के कदमों में लिपट जाते हैं, कहते हैं बाबा आपको जो फैसला लेना हो वो। मुस्तफा रजा को खराश तक नहीं आई। मेरे आला हजरत जलाल में आते हैं, अपना पहली ज्योति आगे करते हैं और
कहते हैं तो हवेली पलटने की बात करता है। इमाम अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। वो पहला हाथ लगाता है, जूते को नहीं हिला पाता है, दूसरा हाथ लगाता है, जूते को नहीं हिला पाता है, पूरी ताकत लगा देता है, जूते को नहीं हिला पाता है और पीछे हट जाता है। कहता है मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है इसलिए जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा कर कहा ये जहालत वाली बात अपनी जेब में रख। इमाम अहमद रजा जादू की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा की हुकूमत की बुनियाद पर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। साहिबो हमारे रजा ने तो हमारी फिक्र की हिफाजत की है। तुम कैसे कहते हो उन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया है, उन्होंने कुफ्र को बढ़ावा दिया है, उन्होंने तो हमारी फिक्र तक ना बेचने दिया है। उन्होंने तो हमें सिखाया खुदा परस्ती क्या है, अल्लाह की इबादत क्या है, उसकी बंदगी क्या है। आज हमारे मोहल्ले में आ जाते हैं कहते मुझ पे इतना है। होता वही है जो रब चाहता, मानेंगे? होता वही है जो रब चाहता है, लेकिन उसके मनाने के अंदाज अलग होने चाहिए। एक बुजुर्ग थे जहाँ वो रहा करते थे, वो बस्ती नदी के किनारे था। उस नदी के किनारे में अचानक आया बहुत तेज पानी और थोड़ा थोड़ा रिश्ते रिश्ते जगह बनाने लगा। गांव वाले डर गए, थोड़े थोड़े गए हजरत चलो दुआ कर दीजिए वरना गांव बह जाएगा। आप अपना लाठी उठाते हैं वहीं आते हैं जहाँ कट रहा था, वहाँ आके क्या करना था, मिट्टी डाल के रोकना था या हाथ लगा के रोकना था। लेकिन देखिए दीवानों को नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। क्या करना था, पानी को बंद करना था। जहाँ पानी कट रहा था वहाँ आपने रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, पहले सर पे बिठाती है फिर उठा के फेंक देती है और लोग सोचते नहीं किसके पीछे राज क्या है। जो लोग सोचते नहीं किसके पीछे राज क्या है। जब आपने रास्ता बनाना शुरू कर दिया गाँव वाले डर के भागने लगे कि तो बाबा मरवाए बेटा, इससे बेहतर इसे बताते ना जाके, ये तो खुद डुबाने में लगा है। गाँव वाले घर खाली करके भागने लगे। आपने जब रास्ता बनाना शुरू कर दिया था खुद ब खुद पानी बंद होना शुरू हो गया। जब पानी बंद हो गया, जब आप हाथ झाड़ते हुए आते हैं तो लोग कहते हैं बताइए हुजूर आपने पानी कैसे बंद कर दिया। आप कहते हैं जब मैंने किनारे पे गया खड़ा हुआ, कहा है मेरे रब अगर ये अपनी मर्जी से तो इसको बंद कर दे, अगर तेरी मर्जी से है तो मैं भी तेरा बंदा हूँ, तेरे काम में हाथ क्यों ना बताओ, तेरा काम आसान कर देता हूँ। आसान से मतलब ये नहीं मान अल्लाह रब के लिए कोई मुश्किल काम था, कहा मैं भी तेरा बंदा हूँ, तेरे काम में हाथ बता देता हूँ और जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। इतनी आवाज आई बंदा तू क्या चाहता है, मैंने कहा मालिक पानी बंद कर दे। इतना कहना था कि दरिया अपना रुख ले लिया। ये मुस्तफा की अदाओलियों की अदा होती है। ये अदा कब बनती है, जब मुस्तफा की रजा में, अपनी रजा में, खुदा की रजा में ढालना होता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।